નમસ્કાર, સિદ્ધુ અને સટ સાથે હું કિશન કાટેલે આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તમને ખબર છે નેતા કેવી રીતે બનાય? પેલા ગરીબની જેમ રહેવાનું, ડાઈ ડાઈ વાતો કરવાની, ગરીબ જનતાને મોટા મોટા સ્વપ્ન બતાવવાના, લાલચ આપવાની કે મારી માં બેન દીકરીને હું દર મહિને 2000 આપીશ, હું તમારા માનો છું, હું ગરીબ છું, હું ક્યારેય મુખ્યમંત્રી આવાસમાં રહેવા નહીં જાઉં, હું ક્યારેય સરકારી ગાડીઓનો ઉપયોગ નહીં કરું, અને જે સત્તામાં હોય એના કરતા લોકોને પોતા માટે કંઈક અલગ સ્વપ્ન બતાવી અને નેતા બનવાનું કામ આ દેશની અંદર થઈ રહ્યું છે। પેલા કેવી વાતો કરે નેતા બનવા માટે કે હું તો તમારામાંનો છું, મને કોઈ રાજકીય મોહ નથી, મારા બાપ દાદાએ કોઈ રાજકારણી નહોતા, સામાન્ય જનતામાંથી આવેલો માણસ છું, એજ્યુકેટેડ છું, હું શિક્ષણ માટે કામ કરીશ, હું આરોગ્ય માટે કામ કરીશ, હું ગરીબો માટે કામ કરીશ। આવી સરસ મજાની ડાઈ ડમરી વાતો કરી અને રાજકારણમાં પ્રવેશે છે। ફોર્મલ સાદા કપડાં પહેરે છે, વેગેનાર ગાડીની અંદર ફરે છે, મુખ્યમંત્રી આવાસ સૌ માટે ખુલ્લો રહે છે, પરંતુ જેમ જેમ ખબર પડવા માંડે ને સિસ્ટમની અંદર કે આ સિસ્ટમમાં ક્યાં પોલ છે કે હું ખોતરીને એને ખાઈ જાઉં, એમ એમ નેતાઓને સિંગડા આવવાના શરૂ થઈ જાય છે। શું થાય છે? સિંગડા આવે છે। કયા સિંગડા? ભ્રષ્ટાચાર રૂપી સિંગડા, સરકારના ટેન્ડરોમાંથી કમાવાના સિંગડા, દિવસે ને દિવસે પોતે વીવીઆઈપી છે એ ફીલ કરવાના સિંગડા, એના સિંગ ધીમે 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 ફૂટવા માંડે। અને જે 10 વર્ષ પહેલાની વાત હોય છે કે હું તમારામાંનો છું, હું તમને આસાનીથી મળી જઈશ, હેલ્પલાઇન નંબરો ચાલુ કરે, લોક દરબારો યોજે, પણ જેમ જેમ એને પૈસા આવે, જેમ જેમ એને પાવર આવે, જેમ જેમ એની અધિકારીઓ પરની પકડ આવે, એમ એમ આ નેતાઓએ ભ્રષ્ટાચારના રાક્ષસ બનતા જાય છે। એમને પછી માત્ર ને માત્ર રસ હું કાયમી કઈ રીતે મુખ્યમંત્રી રહું અને હું કાયમી કેવી રીતે ભ્રષ્ટાચાર કરું, બસ આ જ બાબતમાં રસ હોય છે ને આખરે પછી એવું થાય છે કે પ્રજા જે પરિસ્થિતિમાં એમને લાવી હોય છે એ જ પરિસ્થિતિમાં પાછા પ્રજા એને ઘરે મૂકી આવે છે। સિદ્ધુ અને સટ પ્રસ્તુત છે સામાન્ય લોકોમાંથી નેતા બનેલા લોકો એ કેમ સૌથી મોટા ભ્રષ્ટાચારી બની જાય છે। તો ગુજરાત ફર્સ્ટના વોર રૂમનું બઝર વાગી ગયું છે અને સમાચાર દિલ્હીથી આવી રહ્યા છે। લીકર પોલિસી કેસમાં અંતે અરવિંદ કેજરીવાલનો જેલવાસ નક્કી થઈ ગયો છે। કટ્ટર ઈમાનદારીનો દાવો, હવે જેલમાં કેજરીવાલ। ધરપકડ બાદ કોર્ટની અંદર અરવિંદ કેજરીવાલને રજૂ કરવામાં આવ્યા છે। લીકર પોલિસી કેસમાં કેજરીવાલને જેલવાસ ભોગવવાનો આવ્યો છે। ધરપકડ બાદ કોર્ટમાં રજૂ કરાવાયા છે। કોર્ટમાં વકીલ તરફથી જે દલીલો પૂર્ણ થઈ છે, ઈડીએ 10 દિવસના રિમાન્ડ માંગ્યા છે। રિમાન્ડ દરમિયાન અરવિંદ કેજરીવાલની પૂછપરછ થશે। કૌભાંડના ડાઘથી આપની આબરૂએ તાર તાર થઈ ગઈ છે। સ્વચ્છ રાજનીતિની વાત અને ભ્રષ્ટાચારનો ગાડીઓ ખુદ અરવિંદ કેજરીવાલ પર। ગઈકાલે રાતે અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ થઈ હતી। કૌભાંડના આરોપ હેઠળ કેજરીવાલની ધરપકડ। સમગ્ર કૌભાંડમાં આપને પક્ષકાર બનાવવા ઈડી જઈ રહી છે। ઈડીને સમગ્ર કેસમાં સુપ્રીમની અંદર કેવિયેટ દાખલ કરી છે। પ્રોસિડિંગ પૂર્વે પોતાની દલીલ સાંભળવા ઈડીની રજૂઆત છે। કાયદાનો સકંજો અરવિંદ કેજરીવાલ પર આવતા પોતા પર ક્યાંક જે બે દાગની વાતો થતા હતા એમાં દાગ લાગે એવી શક્યતા દેખાતા આખરે અરવિંદ કેજરીવાલ એ હવે ડાયપણી વાતો કરી રહ્યા છે, પરંતુ આખરે સાબિત થયું છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ અને આમ આદમી પાર્ટી ક્યાંક ભ્રષ્ટાચારના ગાડિયામાં આવી ગઈ છે। सहयोगी देवनाथ मारी साथ दिल्ली थी जोड़ाया है। देवनाथ, क्या कुछ निकल के आ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कहां रखा है? ईडी ने 10 दिन के रिमांड की भी मांग की है। कौन से बेस ईडी ने रजू किए, कौन कौन सी पूछताछ वो ईडी करना चाहती है, कहां कहां उनको लेके जाना चाहती है, और कौन कौन सरकार के आला अधिकारी है, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी है, किन किन की पूछपरछ हो सकती है इस पूरे मामले में? देवनाथ,
देखिए किशन, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, इस वक्त अरविंद केजरीवाल अभी भी राउज एवेन्यू कोर्ट में हैं और उनको लेकर सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के रामलीला मैदान में तपती धूप में बैठकर तपस्या करते थे और कहते थे हम लोकपाल लाएंगे, आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई तो अरविंद केजरीवाल को वहां पर कभी गर्मी लग रही है तो कभी वॉशरूम उन्हें जाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या अरविंद केजरीवाल को गर्मी का उठाना पड़ रहा है और इस बार सुनवाई के बीच में अरविंद केजरीवाल को बार बार बाहर भी निकाला गया। कुल 3 से 4 बार अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप है, एक नया आरोप, कल जब ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची थी तो ईडी को 150 पेज का एक डॉक्यूमेंट मिला है, जिसे सबूत हम कहें, जिसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक और आरोप लगा है नया कि अरविंद केजरीवाल ईडी के 2 बड़े अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे। कि अब सवाल यह है कि आखिर वो अधिकारी कौन थे और अरविंद केजरीवाल उनकी जासूसी करवा के साबित करना क्या चाहते थे उनसे, और आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे थे। तो एक मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया ये बनने वाला है। दूसरा ये, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक कैविएट दाखिल किया, कहा कि पहले हमारी बात सुनी जाए और अरविंद केजरीवाल को हमने क्यों गिरफ्तार किया है, अरविंद केजरीवाल की बातों को सुनने से पहले हमारी बात सुना जाए। खैर, ये पूरा मामला गया जब राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो वहां पर ईडी ने ये भी दलीलें रखी, जो सॉलिसिटर जनरल ईडी की तरफ से पेश हुए थे राजू, उन्होंने ये रखा कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के किंगपिन है, यानी मास्टरमाइंड है, और जो शराब नीति बनी वो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बनी, और जितने पैसे आए थे मनी लॉन्ड्रिंग जिन्हें हम कह रहे हैं, वो गोवा का चुनाव हो या फिर गुजरात का चुनाव हो या फिर पंजाब का चुनाव हो, इन सब चुनाव में जो खर्चे होते हैं, चुनावी खर्चे, इसमें फंडिंग के लिए अरविंद केजरीवाल ने इन पैसों का इस्तेमाल किया था। इन सारी बातों को लेकर ईडी ने अब दलील रखा है। तो ईडी इन्हीं सब बातों को दलील आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की कस्टडी चाहती है, और ये अभी निकलकर सामने नहीं आया कि 10 दिनों की कस्टडी ईडी को मिल चुकी है या नहीं, क्योंकि सुनवाई अभी चल रही है। अब ये कोर्ट तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल की कितने दिनों की कस्टडी ईडी को मिलती है। लेकिन इससे अलग देखा जाए किसान, एक बहुत बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल अभी अपने हट पर अड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा तो नहीं देने वाले हैं, और इसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और बहुत जल्दी इसमें सुनवाई होगी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा आखिर क्यों नहीं देते। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे, क्योंकि हमने दिल्ली की जनता से एक सर्वे किया था और दिल्ली की जनता ने कहा था कि हाँ भाई आप चला सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है वो सर्वे क्या था और कौन सी वो दिल्ली की जनता थी जो अरविंद केजरीवाल को ये मानकर चल रही है कि भाई आप दिल्ली से बैठकर सरकार चलाइए। ये सब सवाल बीजेपी के द्वारा भी पूछे जा रहे हैं। 5 बजे का वक्त है। एक अपडेट इस खबर में और आ रही है कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता इलेक्शन कमीशन अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का हनन है। तो अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए पूरा विपक्ष भी इकट्ठा हो चुका है। लेकिन अब ये भी सत्य है कि राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी को मिलने वाली है और अरविंद केजरीवाल भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी हालत में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ने वाले, उनको किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, बस उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब पहली बार, आपको याद होगा किशन, जब पहली बार दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए थे तो इन्होंने कुछ कस्में खाई थी, अपने बच्चों की कस्में खाई थी। वैगनार इनके पास एक नीली थी और गाजियाबाद में रहते थे। इन्होंने कहा था ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना कुछ चाहिए। लेकिन उसके बाद जब अगली बार दिल्ली की जनता ने पूरा भरोसा दिखाया इन पर, तो केजरीवाल ने अपना पूरा रंग बदल दिया था और सरकारी बंगला, गाड़ी सब कुछ लिया, उन्होंने शीश महल तैयार किया। और यही सवाल जब आज पूछा जाता है तो उस पत्रकार की भी गिरफ्तारी होती है। तो अरविंद केजरीवाल दरअसल अपना मुख्यमंत्री पद इतने आसानी से छोड़ने वाले है नहीं। लेकिन अब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई है, तो हाईकोर्ट तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना है या फिर नहीं रहना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता कहे जाते हैं जो बहुत दूर की सोच रखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है कि ऐसा अगर कुछ होता है तो उनके गैर मौजूदगी में भी उन्हीं के पार्टी के लोग सरकार चलाएंगे, चाहे वो अतसी मरलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो। हालांकि नाम साफ नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है इसके लिए। अब हाईकोर्ट तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अभी तक संविधान में बातें कही जा रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। लेकिन अगर हम एक हिस्ट्री देखें तो जितने मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी इस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में हुई है, सबने पहले अपना इस्तीफा दिया है। या तो वो मुख्यमंत्री
गलत थे या फिर अरविंद केजरीवाल अपने जगह पर गलत है या सही है। तो ये सारी बातें कोर्ट तय करेगी, लेकिन जो अभी तक का डेटा, अभी तक का रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा तो देना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस पर डटे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देने वाले। तिहाड़ में बैठकर आराम से, जैसे तिहाड़ के लोग नेता जेल मंत्री थे सत्येंद्र जैन, वो कहीं ना कहीं मंत्रालय नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन अंतोगत्वा उन्हें मंत्रालय छोड़ना पड़ा था। वैसे अरविंद केजरीवाल आज नहीं कल नहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद छोड़ेंगे, ये बातें कही जा रही है। जी देवनाथ, जिस तरह से कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष से दलील हुई, या ईडी से हुई या आम आदमी पार्टी हो, ईडी ने कौन कौन से मुद्दे रखे कि ये जो पूरा घोटाला क्या है, जो दिल्ली का पैसा था उसको कैसे गोवा और अलग अलग राज्यों में चुनाव के तौर पर उसको यूज किया गया। ईडी की कौन सी बड़ी बातें थी जो कोर्ट के अंदर ईडी ने रखी हो अरविंद केजरीवाल के सामने कि अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पे हमको उनसे पूछताछ करनी है? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को दरअसल ये लग रहा था कि ईडी के पास कुछ है नहीं और ईडी उन्हें ऐसे ही गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि अरविंद केजरीवाल पहले सेशन कोर्ट गए थे और वहां से झटका लगा तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल की दलीलें कल सुनी जा रही थी तो हाई कोर्ट ने भी ईडी से यही पूछा कि आप किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं या फिर गिरफ्तारी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब ईडी के तरफ से सॉलिसिटर जनरल राजू पेश हुए और उन्होंने एक एक करके सारे सबूत वो रखे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए, चाहे हम 15 नाम ले लें जिसमें कि कविता का नाम भी शामिल है, मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है, कि कितना पैसा कहां से आया, और ये पूरा जो घोटाला है 100 करोड़ रुपए का घोटाला जो है भ्रष्टाचार का, इस पूरे मामले को जब ईडी ने रखा जज के सामने हाईकोर्ट के, तो जज ने भी ईडी को यही कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। और इससे ठीक पहले जब ईडी को फटकार लगी थी हाईकोर्ट की तरफ से, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है आईटीओ पर, वहां पर बैठकर आतिशी मरलेना जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो जीत की बधाई दे रही थी एक दूसरे को और कह रही थी कि देखिए हाईकोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। लेकिन जब ईडी ने अपने दलीलें रखी हाईकोर्ट में तो फिर ईडी को कहीं ना कहीं वो बल मिला और अरविंद केजरीवाल के घर पर कल ईडी तुरंत पहुंच गई। और शायद इस बात की कल्पना अरविंद केजरीवाल की मंत्री आतिशी मरलेना ने नहीं की होगी कि अरविंद केजरीवाल आज ही गिरफ्तार हो जाएंगे, और ईडी ने बिना देर किए अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर सबसे पहले समन पकड़ाया, पूछताछ हुई और वहीं से अरविंद केजरीवाल को ईडी के ऑफिस लाया गया। तो ये सारी दलीलें हैं और ऐसे में नई नई कड़ियां भी जुड़ती जा रही है। देखिए, पहले ईडी सवाल कर रही थी कि हम अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं, हमसे सिर्फ पूछताछ करेंगे। अरविंद केजरीवाल उस दौरान कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम ये जानना चाहते हैं कि हमें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, हम क्या गिरोह के सरगना हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के। तो બઝર વાગી ગયું છે અને સૌથી મોટા સમાચાર લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે। અરવિંદ કેજરીવાલને નથી છૂટતો ખુરશીનો મોહ, કટ્ટર ઈમાનદારીના બણગા ફૂંકતા નેતાથી નથી છૂટી રહી ખુરશી। કાલે રાત્રે અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ છતાં હજુ સુધી મુખ્યમંત્રી પદથી નથી રાજીનામું આપ્યું। ભ્રષ્ટાચારના અનેક આરોપ છતાં કેજરીવાલને ખુરશીનો મોહ। ગમે તે પરિસ્થિતિમાં અરવિંદ કેજરીવાલ એ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રહેવા માંગે છે, ભલે તેમના પર ઈડીનો સકંજો હોય, કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હોય, શરાબ ઘોટાલાના આરોપ હોય, પરંતુ એન કેન પ્રકારે અરવિંદ કેજરીવાલ દિલ્હીની જનતાનું જે થવું એ થાય, પ્રશાસન જેમ ચાલવું એમ ચાલે, પરંતુ હું દિલ્હીનો મુખ્યમંત્રી દિલ્હીની જેલમાંથી પણ રહેવાનો છું। આ પ્રકારના દંભ સાથે અરવિંદ કેજરીવાલ એ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી પદથી નથી રાજીનામું આપી રહ્યા। દિલ્હી સરકાર હું દિલ્હીની જેલમાંથી ચલાવીશ, આવો અરવિંદ કેજરીવાલનો દંભ છે। જે અરવિંદ કેજરીવાલ એવું કહેતા હતા કે ભ્રષ્ટાચારના દાગ લાગે એ જ ઘડીએ પોતે રાજીનામું આપી દેશે, અથવા તો ભ્રષ્ટાચારનો દાગ લાગે ત્યારે જ નેતાએ રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ। પરંતુ આ તો અરવિંદ કેજરીવાલે કાચિંડાની જેમ રંગ બદલતા જોવા મળી રહ્યા છે। અને અમારા રિપોર્ટર દેવનાથ પાંડેએ જે વાત રજૂ કરી છે કે જો તમે એક પણ સવાલ એ અરવિંદ કેજરીવાલની લાઈફસ્ટાઈલ પર તમે પૂછી લો કે એક પણ સવાલ તેમની ગાડીને લઈને પૂછી લો તો સીધા જ પંજાબ પોલીસમાંથી એમને પકડી લેવામાં આવે છે। દેવનાથ, कुछ भी हो जाए, दिल्ली का व्यवस्था तंत्र कैसे भी चले, कल रात से वो गिरफ्तारी में है, वो दिल्ली के मुखिया है, वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है,
दिल्ली के आम लोगों का क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा, उनकी उनको बिल्कुल नहीं पड़ी है। उनके पास अभी फोन भी नहीं है, वो ईडी के साथ में है, तो उनको सिर्फ अपनी पड़ी है। वो कह रहे कि कुछ भी हो जाए चीफ मिनिस्टर मैं ही बना रहूंगा। तो दिल्ली की जनता का क्या होगा, कैसे चलेगा दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज सवाल है और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से इस बात पर अड़े हुए हैं कि मैं जेल में जाकर भी वहां से सरकार चला सकता हूं, तो अगर जेल में जाकर अरविंद केजरीवाल सरकार चला सकते हैं तो यानी अरविंद केजरीवाल की जिंदगी अच्छी हो सकती है और उनका जो सपना है कुर्सी पे बैठे रहने का, वो सपना शायद पूरा हो सकता है। लेकिन दिल्ली की जनता की, दिल्ली की जो विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगी। और जिस तरह से एक मैं आपको बात याद दिलाऊंगा, अभी हाल ही में एक पत्रकार ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल अपने उसी सिविल लाइन स्थित आवास में ट्रेडमिल किराए पर लेते हैं और लाखों रुपया उसका किराया देते हैं। इसका खुलासा जब हुआ तो मालूम चला कि जिस व्यक्ति को किराया अरविंद केजरीवाल उस ट्रेडमिल का देते हैं वो उनका बेटा है, उस कंपनी का मालिक उनका बेटा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकारी पैसा अपने किराए के नाम पर अपने घर में ही रख रहे हैं। तो ये खबर निकलकर सामने आई, पंजाब पुलिस उस पत्रकार के घर पर पहुंचती है और यूपी के मेरठ से उसे रात में उठाती है और पंजाब ले जाती है। तो अरविंद केजरीवाल को सवाल पूछना उनके खिलाफ बिल्कुल पसंद नहीं है और अरविंद केजरीवाल जब जब विधानसभा में भी बोलते थे तो उनका तेवर कुछ इस तरह होता है कि हम दिल्ली के मालिक हैं और उन्होंने इस मंशा को भी जाहिर कर देती कि मैं पीएम बनना चाहता हूं। अभी पिछले विधानसभा में हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने एक कहानी सुनाई थी और उन्होंने कहा था कि एक ईमानदार राजा था और उनका कहने का तात्पर्य था कि मैं आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के रूप में बिल्कुल फिट बैठ रहा हूं। यानी कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति, नेता कहते हैं। लेकिन आज देखिए, जब अन्ना हजारे का बयान निकलकर सामने आया तो अन्ना हजारे ने भी यही कहा कि मैंने केजरीवाल को एक पत्र लिखकर समझाने की कोशिश की थी, लेकिन केजरीवाल ने अन्ना हजारे की बात नहीं सुनी। और ये अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। और बीजेपी के नेता इस बात को बार बार हर मंच से कहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि पहले कोई घूस ले रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो पहले उसका वीडियो बनाओ, गिरफ्तार करो, जांच तो चलती रहेगी। लेकिन आज अरविंद ઘણા બધા લોકોએ અરવિંદ કેજરીવાલને લઈ અને પોતાના જે નિવેદનો આપ્યા છે, આમ જનતા શું કહી રહી છે, કારણ કે આપણા માટે તો જનતા મહત્વની છે, ગુજરાતની જનતા શું કહી રહી છે એ પણ આપણે સાંભળી લઈએ। અમે લોકોના રિવ્યુ લીધા છે કે મુખ્યમંત્રી માટે લોકો શું વિચાર રજૂ કરી રહ્યા છે। देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी कवर है, उनको अरेस्ट किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? आज वो ईडी के ऑफिस के अंदर है, उस ऑफिस के अंदर कौन जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी की भी है, ये एक बहुत बड़ी चिंता देश की भी है कि क्या केंद्र सरकार ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था, कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, फिर देखो सारा सच बाहर आएगा कि घोटाला किसने किया। उनको 9 बार ईडी ने समन दिए, वो 9 में से एक बार भी पेश होने नहीं गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जांच एजेंसियों से दूर रहना जरूरी था? एक के बाद दूसरा व्यक्ति शराब घोटाले में जेल में गया और उसके बाद इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पिछले 1 साल से जेल में। आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है 2013 का अरविंद केजरीवाल जी का, व्हेन विल पीपल स्टार्ट गोइंग टू जेल इन दिस कंट्री। क्या तात्पर्य था उनका? वो नहीं चाहते थे कि साधारण लोग जेल चले जाए। क्या वो चाहते थे कि रोड चलता किसी भी आदमी को पुलिस, ईडी या सीबीआई उठा ले? नहीं, उन्होंने एक फहरिस्त जारी की थी कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उन्होंने नाम लिया था रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने नाम लिया था राहुल गांधी का,
लिखा था सोनिया गांधी जी का नाम, यहां तक कि मनमोहन सिंह जी को भी छोड़ा नहीं गया था, प्रणब मुखर्जी तक को छोड़ा नहीं गया था। उन सबके नाम के साथ उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं। 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। आनन फानन में बिना कैबिनेट के अप्रूवल के और बिना सरकारी अप्रूवल के, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था, ये जो आप एक्साइज पॉलिसी ला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, उचित नहीं है, मत करिए, फंसोगे। ये सब कुछ ताक में रख करके फिर भी नवंबर 2021 में नई एक्साइज तो બજાર વાગી ગયું છે અને ફરી એક સમાચાર આવી રહ્યા છે। અરવિંદ કેજરીવાલના રિમાન્ડ મામલે ફેસલો સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યો છે। અરવિંદ કેજરીવાલને રાઇઝ એવન્યુ કોર્ટમાં રજૂ કરાયા હતા અને 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગ જે ઈડીએ કરી હતી તે ચુકાદો અત્યારે કોઈ પણ સમયે કોર્ટ જાહેર કરી શકે છે ચુકાદો। રિમાન્ડ મામલે ફેસલો સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યો છે। અરવિંદ કેજરીવાલના રિમાન્ડ મામલે સૌથી મોટા સમાચાર, રાઇઝ એવન્યુ કોર્ટે ચુકાદો સુરક્ષિત રાખ્યો છે। ગમે તે ઘડીએ રિમાન્ડ પર કોઈ પણ સમયે કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો જાહેર કરી શકે છે। અરવિંદ કેજરીવાલ સામે ઈડી દ્વારા 10 દિવસના રિમાન્ડ માંગવામાં આવ્યા છે। હાલ જે કોર્ટ છે તેના દ્વારા સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યો છે ચુકાદો। ગમે તે ઘડીએ ચુકાદો જાહેર થઈ શકે છે। કોર્ટ પોતાની વાત એ મૂકી શકે છે કે ઈડીએ જ્યારે 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરી હતી તો એમાંથી કેટલા દિવસના રિમાન્ડ એ અરવિંદ કેજરીવાલ માટે મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે। અરવિંદ કેજરીવાલના રિમાન્ડ મામલે આ સૌથી મોટા સમાચાર। તેમને ગઈકાલે ઈડી દ્વારા ધરપકડ કરી અને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા। કોર્ટમાં બંને પક્ષ દ્વારા આમને સામને અનેક જે દલીલો છે કરવામાં આવી અને આખરે કોર્ટ દ્વારા જે ચુકાદો છે સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યો છે। કોર્ટ એ ગમે તે ઘડીએ પોતાનો ચુકાદો એ સંભળાવી શકે છે। सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ, फिलहाल कोर्ट ने जो अपना निर्णय है उसको तय कर लिया है। किसी भी समय पर अरविंद केजरीवाल को कितने दिन के रिमांड है उसका जो चुकादा है, जो कोर्ट है अपनी बात रख सकती है। क्या लग रहा है कि 10 में से कितने दिन की जो रिमांड यात्रा है वो केजरीवाल को भुगतनी पड़ेगी? देखिए, बिल्कुल सुनवाई पूरी हो चुकी है और ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और अब जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें कहा जा रहा है कि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, तो अब ईडी को 10 दिनों का रिमांड मिल सकता है अरविंद केजरीवाल का। और अब से कुछ देर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा इस पूरे मामले में। और ईडी ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके पास और भी कई ठोस सबूत हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल का हमें 10 दिनों का रिमांड चाहिए। और 10 दिनों के रिमांड में हम अरविंद केजरीवाल से तमाम तरह की पूछताछ करेंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जब राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो उसमें ये बातें जरूर कही जाएंगी कि 10 दिनों की रिमांड अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोर्ट का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन इतना तो जरूर है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब से कुछ देर बाद किसी भी वक्त ये बयान निकलकर सामने आ सकता है। जी, तो फरी बजर वागी गયું છે ને સૌથી મોટા સમાચાર ગુજરાત ફર્સ્ટના વોર રૂમથી આવી રહ્યા છે। બજર વાગી ગયું છે। કેજરીવાલના બે ચહેરા અલગ અલગ સામે આવ્યા છે। જે અરવિંદ કેજરીવાલ અગાઉ ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું કે નેતાઓ રાજીનામા નથી આપતા। અરવિંદ કેજરીવાલના કાચિંડાની જેમ કલર બદલાતા બે ચહેરાઓ સામે। અગાઉ ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું કે નેતાઓ રાજીનામું નથી આપતા, ઈડીનું સમન્સ મળે તો પણ રાજીનામું નથી આપતા। કેજરીવાલનું જૂનું ટ્વીટ છે એ અમે દર્શાવી રહ્યા છે। 2012નું ટ્વીટ છે કે ઈડી એન્ડ સીબીઆઈ even after multiple summons by the investigation resign from their post immediately as soon as the
વેર મેડ, એટલે જ્યારથી તમને ઈડી અને સીબીઆઈ ની નોટિસ મળે ત્યારથી તમારે રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. આવા ગપ્પમ ગપ્પી વાત કરતા એક નંબરના જૂઠા અરવિંદ કેજરીવાલ, એને અત્યારે ઈડી પોતાની સાથે લઈ ગઈ છે. એમના રિમાન્ડ પર ગમે તે ઘડીએ મંજૂર થવાના છે, કોર્ટમાં પણ હાજર કરી દેવામાં આવ્યા છે. એમ છતાં પણ કાચિંડાની જેમ રંગ બદલતા નેતાઓ અત્યાર સુધીના એવા મુખ્યમંત્રી છે. હેમંત સોરેન પર જેવો એને ખબર પડી કે મારે ગિરફ્ત થવાનું છે, સીધું પોતાનું મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું. કારણ કે મુખ્યમંત્રી એવો ચહેરો છે, એક એવું હોદ્દો છે કે જેને તમારે જાળવીને રાખવો હોય છે. પરંતુ અલગ અલગ દ્રશ્ય 2024માં પકડાઈ ગયા છે. એમ છતાં પણ તેમને કોઈ જાતની શરમ નથી. 2011ના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં અરવિંદ કેજરીવાલ એકદમ સિમ્પલ, સાધારણ, અને જ્યાં અન્ના આંદોલનના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં સફાઈઓ ઠોકતા હતા, લોકોને જ્ઞાન પીરસતા હતા, સિમ્પથી ગેઇન કરતા હતા અરવિંદ કેજરીવાલ, લોકપાલની મોટી મોટી વાતો કરતા હતા. પરંતુ એ જ અરવિંદ કેજરીવાલ 2011 થી 2024માં કેટલા બદલાયા છે સાહેબ, એ તો જુઓ. બિલકુલ શરમ નથી, કોઈ પણ પ્રકારની શરમ નથી અરવિંદ કેજરીવાલને. કારણ કે આ એક ચહેરો તમે જો 2024નો અને 2011નો ચહેરો દો, વ્યક્તિ ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી શકે. જે નિયમો બીજા માટે લાગુ પડાવવાની વાત કરતા હોય એ જ નિયમો જ્યારે પોતાની વારી આવે ત્યારે લાગુ નથી પડતા. ખરા અર્થમાં આવા નેતાઓને પ્રજા જ સમય આવે જવાબ આપશે. અન્ના હજારે આ આખી ઘટનાને સાંભળીને રડી પડ્યા કે મેં મારા આંદોલનમાં આવા લોકોને શું કરવા જગ્યા આપી હતી કે જે ત્યારે ડાઈ વાતો કરીને અત્યારે કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કરે. અન્ના હજારે શું કહ્યું એ પણ આપણે સાંભળી લઈએ. अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ. लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता. आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ. हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था. तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेंगे. તો નેતાઓની રમત એ સાપસીડી જેવી છે. જ્યારે મેળ આવે ત્યારે તરત ઉપર ચડી જાય, પરંતુ જ્યારે પ્રજા ધક્કો મારે અથવા તો ભ્રષ્ટાચારમાં આવે ને ત્યારે ભ્રષ્ટાચારના ભોરિંગ રૂપી સાપ એ નેતાને ફરી નીચે મૂકી દેતો હોય છે. અને આ સાપસીડીની રમતમાં અરવિંદ કેજરીવાલનો ભ્રષ્ટાચારી ચહેરો ક્યાંક ખુલ્લો પડી ગયો છે. પરંતુ એમ છતાં પણ દિલ્હીની જનતા સાથે અન્યાય કરી અને એન કેન પ્રકારે એમને મુખ્યમંત્રી રહેવું છે. સીધું અને સટ મારું એક જ કહેવું છે કે નેતાઓ એ જેવા પાવરમાં આવે તેવા ભ્રષ્ટાચાર કરવાનું નથી છોડતા. આમ જનતા એટલે ગરીબની ગરીબ જ રહે છે. સીધું અને સટમાં હાલ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.